Very good morning, children. Welcome to the psychology class. So, children, I hope you are studying. You all are studying well, and but every time I used to say that, and my always concern was that you watch the videos on a regular basis, and the most importantly, focus toward your study. This is my goal. Okay, and I'm trying my end also that how easily I make your topic to understand it, and just give so that you will give your best in your board examination. So children, we are studying the chapter social influence and group processes, and in this chapter the last topic which we had discussed is about the conformity, which is also a kind of social influence. So another kind of social influence after the conformity is the compliance. So today we are going to study about the compliance. हम लोग compliance पढ़ेंगे कि क्या होता है and we will go in detail. तो compliance के बारे में तो हम लोग ने डिस्कस किया और मैंने आपको बताया भी कि compliance क्या होता है. तो compliance क्या है children? Accepting the request made by someone. It is also a kind of social influence. Okay? अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कंप्लाई कर रहे हो. It was stated earlier that compliance refers simply to behaving in response to a request from another person or group even in the absence of a norm. A good example of compliance is a kind of behavior shown when a salesperson comes to your door. Very often the person comes with some good that we really do not wish to buy. But sometimes to our own surprise, we find that the salesperson has spoken to us for a few minutes and the conversation has ended with the purchase of what he or she wished to sell. So why do people comply? Reason is, एक सेल्स पर्सन, एक सेल्स का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे यूजली डोर टू डोर जो पर्सन सेलिंग करते हैं, आपका यू डू नॉट विश टू परचेज इट, बट द वे दे विल अप्रोच टू यू दैट मेक यू परचेज दोज थिंग्स, दैट मेक यू टू कंप्लाई विद इट. वो ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि आप उससे कंप्लाई कर जाते हैं. तो ऐसा क्या होता है कि वी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट मेड बाय समवन. So basically there were three main techniques of compliance which help us to understand the compliance. The techniques are, the first one is the foot in the door technique. Foot in the door. Second is the door in the face. And last is the deadline. So ये three techniques हैं, foot in the door, door in the face and deadline. ठीक है? So children, चलिए इन टेक्निक्स को समझते हैं, जिनमें सबसे पहले है फूट इन द डोर टेक्निक. थोड़ा सा आपको इनके नाम से भी समझ में आएगा, जैसे फूट इन द डोर और डोर इन द फेस. ठीक है? सो डोर में फेस जा रहा है और डोर में फूट जा रहा है, तो विच इज मोर बिगर, फूट और फेस? आई थिंक फूट द बिगर इज द फेस. फेस ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द फूट. तो इट इज ऑल अबाउट द रिक्वेस्ट. तो आप इससे को रिलेट कर सकते हैं. फूट इन द डोर में हम लोग स्मॉल से बिग रिक्वेस्ट में जाते हैं, स्मॉल टू बिग रिक्वेस्ट, और डोर इन द फेस में बिग रिक्वेस्ट से स्मॉल की तरफ जाते हैं. फूट इन द डोर टेक्निक क्या होती है कि यूजुअली द पर्सन फर्स्टली आस्क टू यू या द पर्सन रिक्वेस्ट टू यू फॉर अ स्मॉल थिंग. छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड व्हेन यू कंप्लाई विद इट and slowly they will come to the large request. तो अभी इशू क्या होता है? द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने उस पर्सन की स्मॉल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया,
So now you have to accept the larger request also. The person began by making a small request that the other person is not likely to refuse. Once the other person carries out the request, the bigger request is made. Simply because the other person has already complied with the smaller request, he or she may feel uncomfortable refusing the second request. For example, someone may come to us on behalf of a group and give us a gift, saying that it is for promotion. Soon afterward, another member of the same group may come to us again and ask us to buy a product made by the group. So you will not deny it. ठीक है, मान लीजिए वही ग्रुप ने आपको गिफ्ट दिया और आपने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया. अब वही ग्रुप कुछ दिन बाद आपसे कुछ परचेज करने के लिए कहेगा तो आप नहीं मना कर सकते हो. So that is a technique and that is a technique of foot in the door. आप समझ रहे हैं बच्चों किस तरीके से लोग कॉम्प्लायंस करते हैं. हमने अभी लास्ट वहां पे छोड़ा था कि क्यों ऐसा होता है कि लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. फूट इन द डोर. स्मॉल रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करते हो तो नाउ इफ अदर पर्सन हैव पुट अ बिग रिक्वेस्ट ऑन यू, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आपको करना पड़ता है. सेकेंड है डोर इन द फेस. Door in the face where we move to the large request to the small. Okay, big to the small. In this technique, you begin with a large request and when this is refused, a later request for something smaller, the one that was actually desired, is made, which is usually granted by the person. Now, it is also something. So, I hope you understand about the foot in the door technique and door in the face. डोर इन द फेस टेक्निक में क्या हो रहा है बच्चों कि डोर इन द फेस टेक्निक में एक्चुअली क्या हुआ, मान लीजिए आपके सामने किसी ने कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर दी. जैसे यूजली छोटे बच्चे बहुत जल्दी ये सारी चीजें करते हैं. दे नो द ट्रिक. ओके, कि हाउ टू मेक द पेरेंट्स कंप्लाई विद देयर रिक्वेस्ट. सो बेसिकली दे पुट अ लार्जर रिक्वेस्ट कि पापा मुझे कार चाहिए. ओके, अ बिग कार. तो अगर वो डिनाई हो जाता है तो फिर वो सेकेंड ऑप्शन रहता है. ओके, मुझे ये वाला अच्छा. वो भी डिनाई होता है तो दे पुट अ थर्ड ऑप्शन. तो वो कहीं ना कहीं तो एक स्टेज आएगा कि द अदर पर्सन विल कंप्लाई विद यू. दे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. ओके, कितनी बार डिनाई करेंगे. तो लार्जर अगर रिक्वेस्ट डिनाई हो जाता है तो स्मॉलर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक जिससे कि लोग कंप्लाई कर रहे हैं. सो आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ द compliance. The next one and the last one is the deadline technique. Yeah, deadline technique also has an amazing part. इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पार्ट होता है. कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज बहुत जल्दी में बोली जाती है तो हमारे पास क्या होता है, सोचने का भी नहीं समय होता और हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लो. तो दैट इज अ डेडलाइन टेक्निक. ओके, यू डू नॉट हैव द टाइम टू थिंक. समटाइम आप देखें कोई ऐसे मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे इफ यू हैव सीन द नाप तोल, तो उनके पास होता है अब टाइम जा रहा है आपका. ओके, तो इन दिस टेक्निक अ लास्ट डेट इज अनाउंस्ड अंटिल विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एन ऑफर विल बी अ लास्ट डेट इज अनाउंस्ड अंटिल विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एन ऑफर विल बी अवेलेबल. एक लास्ट डेट अनाउंस हो जाती है कि जब तक ऑफर अवेलेबल है. ठीक है. द एम इज टू मेक पीपल हरी एंड मेक द परचेज बिफोर दे मिस द रेयर अपॉर्चुनिटी. इट इज मोर लाइकली दैट पीपल विल बाय अ प्रोडक्ट अंडर दिस डेडलाइन कंडीशन इफ देयर इज नो सच डेडलाइन. कभी कभी क्या होता है, सो डेडलाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर मेकिंग द पर्सन कंप्लाई विद देयर रिक्वेस्ट. ओके, जब हम कोई डेडलाइन दे देते हैं कि यही टाइम पीरियड तक ये ऑफर रहेगा तो हम मजबूर कर देते हैं सेकेंड पर्सन को कि वो उस ऑफर को अवेल करे. सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन द पीपल कंप्लाई विद इट. कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है कि जब पर्सन कॉम्प्लायंस करता है. ओके, सो वी गेट टू अंडरस्टैंड her techniques. These are the techniques: foot in the door, door in the face, and the deadline technique. I hope the topic compliance you understand. Here we have completed the topic compliance. Now we will move in toward to the next type of social influence, which is the obedience.
Obedience is also one of the social influence. We had discussed the conformity. So I hope children you understand about the compliance. Compliance के बारे में आप अच्छे से समझ रहे हो. Now we will discuss about the obedience. Obedience के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Obedience क्या है? It is also a request which accepted by the someone, but it is a request which was made by an higher authority figure, or someone who is in a kind of in a position, कोई पोजीशन पे हैं या फिर आपसे बड़े हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप कंफर्मिटी नहीं कर कॉम्प्लायंस नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप ओबीडियंस करते हो. मीन्स उनकी रिक्वेस्ट को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो. दैट इज नॉट अ कंफर्मिटी, दैट इज नॉट अ कॉम्प्लायंस, दैट इज अ ओबीडियंस. वो क्या है? That is a obedience. Obedience पे एक there was a psychologist whose name is Milgram. इनका बहुत famous experiment है and it was very known also. So Milgram word Milgram आप बहुत सुनने को मिलेगा आपको. When compliance is shown to an instruction or order form, a person in authority such as parents, teachers, leaders or policemen, so that behavior is called obedience. Why people show obedience is easy to understand. Most often it is because if we disobey, some punishment might follow. Obviously हमने हर बार ये reason जाना कि लोग conformity क्यों करते हैं, लोग कॉम्प्लायंस क्यों करते हैं. ऑब्वियसली एक और रीजन है कि ओबीडियंस क्यों करते हैं. जब हम ये पढ़ेंगे कि कंफर्मिटी क्यों होती है, कॉम्प्लायंस क्यों होती है, या ओबीडियंस क्यों होता है, या कैसे होता है. तो ओबीडियंस इसलिए होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि अगर हम किसी को डिसओबे करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट फेस करना पड़ सकता है. Like police is an authority figure and police have made some rule, and if you disobey it, you will be fined, you will be having a kind of punishment also. Parents, if you disobey them, teachers, if you disobey them, so you will get a punishment. Sometimes it is because we believe that persons in authority must be obeyed, but कभी कभी हमें लगता है कि it is our moral values and ethical values कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए. We should obey them. People in authority have effective means of enforcing their order. Milgram conducted an experiment to show that individuals obey command from people who are strangers. The experimenter informed the respondent in the study that they were participating in an experiment to study the effect of punishment on learning. मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि ओबीडियंस कैसे होता है. अगर कोई ऑथोरिटी पर्सन कुछ कहता है करने के लिए, इनफैक्ट इफ दैट वर्क इज रॉन्ग ऑल्सो, okay, maybe somewhere it is unethical also, but we still do it because that particular person has said us to do it. So it is proven by the Milgram on the basis of his experiment, and where he has taken some of the participants in his experiment, and he told his participant that we are studying the effect of punishment on learning. Punishment का effect हम लोग देख रहे हैं learning पे. The experiment was conducted on pairs. Pairs में ये experiment कराया गया. One person in each pair was the learner. हर एक ये पेयर्स में कराए गए और हर एक पर्सन हर एक पेयर में जो थे वो लर्नर थे, जिसका काम था टू whose work was to memorize the pairs of word. The other participant was the teacher who would read these words aloud and punish the learner when he or she made effort by giving him or her shock. See, पेयर्स में कराए गए और एक पेयर्स में एक जो था वो लर्नर था जिसको लर्न करने थे वर्ड्स, और एक जो था वो टीचर था. टीचर वर्ड्स को लाउडली बोलता था और अगर लर्नर उन वर्ड्स को नहीं बोल पाता था तो टीचर उसे पनिश करता था, और वो पनिशमेंट था कि हर एक एरर्स पे जो भी एरर या जो भी मिस्टेक वो करेगा, इट वॉज गिवन अ शॉट, एक शॉट दिया जाएगा.
The learner would make error according to the pre-arranged instruction. The teacher was asked to deliver a shot each time the learner made error. The teacher was further told to increase the strength of the shot each time the learner made an error. In reality, no shots were given. The instruction was so arranged that teacher was faced with the dilemma that should he or she continue shots even when they were increasingly painful. The experimenter kept on motivating the teacher to continue. In all, 65% showed total obedience. शॉट नहीं दिया जा रहा था, टीचर्स को बुरा भी लग रहा था कि वे लर्नर को शॉट दे रहे हैं. लर्नर नोज अबाउट इट. ओके, लर्नर्स को पहले से ही बताया गया था, बट टीचर वर अनअवेयर अबाउट इट. टीचर्स को बुरा लग रहा था, बट फिर भी वो शॉट दे रहे थे क्योंकि दे वर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो. ओके. Some participants, however, protested and asked the session to end. Milgram's study suggests that even ordinary people are willing to harm an innocent person if ordered by someone in authority. मतलब एक अननोन पर्सन भी किसी इनोसेंट को हार्म पहुंचाने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर उन्हें वो अथॉरिटी फिगर ने ऐसा कहा है करने के लिए. सो दिस इज द पावर ऑफ ओबीडियंस. I know it is a wrong thing. Obviously, we should think of our own self कि what is right and what is wrong. But usually ऐसा नहीं होता, and it is known as a social influence. It is यही तो है social influence ना बेटा. Okay बच्चों, यही है social influence, obedience. Now, why do people obey even when they know that their behavior is harming others? Now we will study about the reason. So I had discussed with you the Milgram experiment. You will write it down, children, in your examination कि मिलग्राम ने क्या किया था. ठीक है, पेयर्स में उन्होंने वर्क किया था. वन इज द टीचर, वन इज द लर्नर. एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट आप रीजन बताएंगे. रीजन मीन्स व्हाई डू पीपल डू द ओबीडियंस. क्या रीजन है ये जानने के बाद जो भी इट इज नोन टू पर्सन दैट देयर बिहेवियर विल हार्म द अदर पर्सन, दे स्टिल डू द ओबीडियंस. व्हाट इज द रीजन? उन्हें ये पता है कि उनका बिहेवियर लोगों को हार्म करेगा, फिर भी वो ओबीडियंस करते हैं. क्या रीजन है? सबसे पहला, पीपल ओबे बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन. दे आर सिंपली कैरिंग आउट ऑर्डर्स फ्रॉम द अथॉरिटी. उनको इसलिए लगता है कि जो ये हम काम कर रहे हैं ये मुझे किसी ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं अपनी विलिंग से नहीं कर रहा हूं. सो पहला रीजन ये हो गया. द फर्स्ट रीजन इज ऑर्डर फ्रॉम अथॉरिटी. ऑर्डर फ्रॉम अथॉरिटी. अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये नहीं करते. सेकेंड रीजन, authority generally poses a symbol of status which people find difficult to resist. Authority के पास status होता है जिससे resist करना difficult होता है. difficult to resist. मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और वहां का जो हेड है वो आपसे किसी काम को करने के लिए कह रहा है. unless and until you know about it, it is not good. ऐसा करना सही नहीं है, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज जो वो पर्सन है वो एक स्टेटस पे है और उस स्टेटस पे रहने की वजह से वो उस चेयर पे है कि आप उसके ऑर्डर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते. मीन्स उस ऑर्डर को यू कैन से दैट डिनाई नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू फॉलो इट. थर्ड, अथॉरिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस कमांड from lesser to greater level and initial obedience bind the follower for commitment. Once you obey small orders, slowly there is an acceleration of commitment for the person who is in authority and one start obeying bigger order. Yeah, moving from small order to bigger order. ये भी है. Small order to bigger order. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. छोटे छोटे जैसे अथॉरिटी फिगर ने आपके सामने कुछ स्मॉल ऑर्डर्स रखे, ठीक है, आपने उसको फॉलो किया, आपने उनकी बातों को माना. नाउ
छोटे छोटे ऑर्डर्स आपके सामने रखते थे, आप उन सारी चीजों को मानते रहे, यू फॉलो इट. Now that person have put a big order also on you. Now again you have to do the obedience. आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने उनकी सारी चीजों को माना है. तो अथॉरिटी जो होती है वो लेसर टू ग्रेटर लेवल पे कमांड्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, और इनिशियल ओबीडियंस यानी आप शुरू में अगर आपने ओबीडियंस कर लिया तो वो आपको बांध देते हैं फॉर द कमिटमेंट. ठीक है, सो कमिटमेंट के लिए आप बंध जाते हो, आप कमिटेड हो जाते हो. नेक्स्ट पॉइंट, many times events are moving at such a fast speed, for example in a right situation, that one has no time to think, just obey orders from above. Fourth point is the right situation is responsible. Right situation वो situation होता है, it is a situation of hurry. Okay, जब आपके पास समय नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आपके पास जरा सा भी समय नहीं है, यू वर वेरी मच बिजी, और कोई आपसे बोला ये पर्टिकुलर काम आपको करना है, आप इतना बिजी हो आप उसका काम कर देते हो, अच्छा ठीक है ये कर लो, आप ओबीडियंस कर लेते हो, आपके पास इतना समय नहीं है, यू डोंट हैव सच अ टाइम टू थिंक ओवर दैट वन, वेदर दैट थिंग, यू डोंट हैव सच अ टाइम कि आप ये सोचो कि वेदर द वर्क यू आर डूइंग इट इज एथिकल और अनएथिकल. So in a right situation also, which is a situation of hurry, you will do the obedience. So these are some of the reasons of obedience. If it is order from the authority, और authority का status अगर है तो you have a difficult to resist. Small order आपने obedience कर लिया तो आपको bigger भी करना पड़ेगा, क्योंकि you become committed toward that one. आप committed हो जाते हो. राइट सिचुएशन यानी जब व्हेन यू हैव नो टाइम टू थिंक, जस्ट ऑर्डर्स, द फॉलो ऑर्डर्स ओबे करिए, जस्ट ओबे द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द हायर अथॉरिटी फिगर. सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन, द कॉम्प्लायंस एंड ओबीडियंस. वी हैव कंप्लीटेड दिस थ्री टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. वी हैव डिस्कस अबाउट द कंफर्मिटी, compliance and obedience. I hope you understand it. आपको समझ में आया होगा. Now after this type of social influence, after understanding this, one topic which we are going to discuss about and which is also a part of the group is cooperation and competition. जब हम ग्रुप में होते हैं चिल्ड्रन, तो the two things play a very important role. That is a cooperation and competition. हम जब ग्रुप में होते हैं तो members used to cooperate with each other also, as well as they will compete with each other also. So let us study about this one also. Quickly हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, cooperation and competition. Cooperation and competition. People interact with each other in different contexts. Behavior in most social situations are characterized by either cooperation or competition. Okay, when group work together to achieve shared goal, we refer to it as cooperation. And the reward in cooperative situation are group reward and not individual reward. However, when members try to maximize their own benefit and work for the realization of self-interest, competition is likely to result. So, ग्रुप में कॉपरेशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है. जब सारे ग्रुप के मेंबर एक साथ काम करते हैं, गोल्स को शेयर करते हैं, तो दे हैव अ कॉपरेशन. बट उनका जो रिजल्ट और आउटपुट होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर को नहीं मिलता. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉपरेशन एंड कंपटीशन. वो सबको मिलेगा, ग्रुप एज अ होल. बट इन कंपटीशन व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट, about your individual identity, so then here come the competition. फिर competition आता है. दो तरह के गोल के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, cooperative goal and competitive goal. What is cooperative goal and another is
competitive role. What is cooperative role and what is competitive role? Competitive roles are set in such a way that each individual can get his or her goal only if others do not attain their goal. That is a competition. And cooperative role on the other hand is one in which each individual can attain the goal only if other members of the group is also attaining the goal. So children, you understanding the difference between cooperative role and competitive? कॉपरेशन में कॉपरेटिव रोल होता है और कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव रोल होता है. कॉपरेशन यानी अगर आप कुछ अटेंड कर रहे हैं तो बाकी भी अटेंड कर रहे हैं, एंड कॉम्पिटिशन में क्या, ओनली यू आर अटेनिंग, अदर्स वर नॉट अटेनिंग, सो दैट इज अ कॉम्पिटिशन. For example, in the school, the first rank holder is only the one child, not everyone. Okay. Similarly, in the match, अगर कोई मैच हो रहा है, ग्रुप में मैच हो रहा है, तो every member get the reward because वो match they win the match because of the effort of each and every member. So that become a cooperative role. So understand the difference between cooperative role and competitive role. So children, are you understanding what is cooperation and what is competition and what is cooperative role and competitive? Let's take another example. Just जो रेस होता है, in that race also are of so many kind. Okay, अगर ऐसा रेस है where one have to win. Okay, जो 8th floor पे होते हैं और all the runners will run together, तो that is a race of competition. Competitive role, only one will win. But one of the race was their victory game होता है जिसमें हर एक मशाल पास आउट करते हैं या स्टिक पास आउट करते हैं. तो that is based on a cooperation. That is not a competition. So understand the difference between the cooperation and competition and cooperative role and competitive role. इसको प्रूव करने के लिए ड्यूश is a name of psychologist. Please note it down. DEUTSCH. ड्यूश नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ही डिवाइडेड द पार्टिसिपेंट टू टू ग्रुप. वन ग्रुप इज नोन एज कोऑपरेटिव ग्रुप एंड अनदर ग्रुप इज नोन एज कॉम्पिटिटिव ग्रुप. नाउ वन ग्रुप को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यू विल बी रिवॉर्डेड इफ यू वर्क कलेक्टिवली इन अ ग्रुप. ओके, और कॉम्पिटिटिव ग्रुप को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि दे वर रिवॉर्ड फॉर देयर इंडिविजुअल एक्सेलेंस. सो इट हैज बीन फाउंड दैट कि जिस ग्रुप में कलेक्टिव के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला था, तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज वर्किंग, दे इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप देयर इज मोर हार्मनी, मोर पीस, मोर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटिव ग्रुप. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्यूश ही हैज प्रूव्ड दैट कि दिस इज द फेनोमेना विद द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिशन. इस कॉपरेशन और कंपटीशन को कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं. सो देयर वर द 3 मेन डिटर्मिनेंट व्हिच डिटरमाइन द कॉपरेशन एंड कंपटीशन. व्हाट आर द 3 मेन डिटर्मिनेंट्स? द फर्स्ट वन इज रिवॉर्ड स्ट्रक्चर. रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी डिटरमाइन करता है कि ग्रुप में कॉपरेशन होगा कि कंपटीशन होगा. अब रिवॉर्ड हम उनको दे रहे हैं जो एक्सीलेंस कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है या सभी को दिया जा रहा है. अगर सबको दिया जा रहा है तो ग्रुप में कॉपरेशन होगा. सबको नहीं दिया जा रहा है, हमने रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर कर दिया कि कोई एक ही जीतेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इट विल क्रिएट अ कॉम्पिटिशन. सेकेंड इज द डिटरमिनेंट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा ग्रुप में कॉपरेशन रहेगा. कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो ग्रुप में कंपटीशन रहेगा. सो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन मैटर्स अ लॉट. द थर्ड डिटरमिनेंट इज द रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी यानी रेसिप्रोकल वर्ड से ये बना है. रेसिप्रोसिटी मीन्स व्हाट यू गेट यू विल रिटर्न इट. जो हमें मिलता है हम वही वापस करते हैं. दैट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी. तो अगर हमारे साथ कोई कॉपरेट करता है तो वी विल कॉपरेट इट. इफ एनीबडी डू द कॉम्पिटिशन विद अस तो वी विल डू द कॉम्पिटिशन. रेसिप्रोसिटी मीन दैट पीपल फील ऑब्लिगेड टू रिटर्न व्हाट दे गेट. इनिशियल कॉपरेशन में इनकरेज मोर कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन में प्रमोट मोर कॉम्पिटिशन.
So if someone help, you feel like helping that person. On the other hand, if someone refuses to help you when you need help, you would also not like to help that person. So ये भी डिटरमाइन करता है कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन को. जैसे आपने किसी की मदद की और आप चाहोगे कि फिर वो भी आपकी मदद करे, या आपको जब मदद की जरूरत थी उसने आपकी मदद नहीं की तो अब आप भी नहीं मदद करते हो, ठीक है, या किसी ने आपकी मदद की तो फिर यू विल ऑल्सो हेल्प इट. तो दिस डिटरमाइन द cooperation and competition. So children, in the today's video we will discuss the three main topics: compliance, obedience, cooperation and competition. Whenever you feel any doubt, you will ask me anytime, okay? And I just say this is for all today. Thank you so much for carefully observing and listening to me. Thank you, children.